بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ایک اور کیس انجام کے قریب۔ دوران عدت نکاح کیس کا فیصلہ محفوظ۔ سینئر سول جج قدرت اللہ آج دوپہر 1 بجے فیصلہ سنائیں گے۔ اڈیالہ جیل پہ 14 گھنٹے طویل سماعت۔ استغاثہ کے چاروں گواہان پر وکلا صفائی کی جرح مکمل۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے سلمان اکرم راجہ نے جرح کی۔ گواہان خاور مانیکا، اون چودھری، مفتی سعید اور ملازم لطیف بھی اس میں پیش ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے 342 کا بیان جمع کرا دیا۔ سوال نامے میں 13 سوالات پوچھے گئے۔ سلمان راجہ نے جوابات تحریر کرائے۔ بشرا بی بی نے 14 نومبر 2017 کو طلاق نامہ من گھڑت قرار دے دیا۔ شہادت صفائی میں گواہ پیش کرنے کی درخواست مسترد۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس منشور کو بنایا تھا۔ یہ ہمارا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ ہے۔ پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت بنتی ہے پاکستان کے عوام کی آمدنی کو دگنی کرے۔ غریب عوام کو ہم 300 یونٹ سولر کے تھرو مفت بجلی دلوانا چاہ رہے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نہ صرف اضافہ کریں گے مگر ان خواتین کو بلا سود قرضے دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے، ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ وعدہ ہے 17 وزارتیں ختم کر کے پیسہ عوام پر لگاؤں گا۔ وقت آ گیا ہے اشرافیہ کی سبسڈی ختم کی جائے۔ بلاول بھٹو کی جیکب آباد میں نیوز کانفرنس۔ کہا مہنگائی، غربت، بے روزگاری کو مد نظر رکھ کے منشور بنایا۔ حکومت بنی تو آمدن ڈبل، 300 یونٹ بجلی مفت دوں گا، 30 لاکھ گھروں کو مالکانہ حقوق بھی دیے جائیں گے، کسانوں، مزدوروں اور نوجوانوں کے لیے کارڈز فراہم کریں گے۔ یو سی کی سطح پر بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں۔ پرائمری سکولز میں بچوں کو کھانا فراہم کیا جائے گا۔ کسان کارڈ کے ذریعے ہاریوں کو براہ راست مالی مدد دیں گے۔ بھاری اکثریت ملے گی تو کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ جیکب آباد میں بارش کی وجہ سے جلسہ منسوخ۔ ادھر شکارپور میں جلسے سے خطاب میں کہا نہ کھپے نہ کھپے، میاں صاحب نہ کھپے، ہم سازش کی سیاست کو نہیں مانتے، ملک کو مسائل سے صرف پی پی نکال سکتی ہے۔ معاشی معاہدہ تیار کر لیا، وزیر اعظم بن کر غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ کروں گا۔ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، انہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا ہے۔ اس کا نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، اس کا نقصان پاکستان کی معیشت کو ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نفرت کی سیاست میں یقین نہیں۔ کہا گیا 50 لاکھ گھر بنائیں گے، کسی کو گھر ملا؟ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا گیا، کیا کسی کو نوکری ملی؟ ہم سچی اور گھری بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کرتے ہیں۔ نواز شریف کا فیصل آباد میں جلسے سے خطاب۔ کہا وہ دھرنے دے رہے تھے، ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر رہے تھے، ممی ڈیڈی والی نہیں، اصل یوتھ ہمارے ساتھ ہے۔ آٹا، گیس، پیٹرول، چینی سب سستا کریں گے، 5 سال بعد یہاں کوئی بے روزگار نظر نہیں آئے گا۔ بولے فیصل آباد والوں، شہباز شریف نے آپ کو میٹرو بس پر ٹرخا دیا، یہاں صرف میٹرو نہیں آرنج لائن ٹرین بھی ہونی چاہیے۔ آپ نے 8 فروری کو شیر پر مہر لگانی ہے، ہیر پھیر پہ نہیں، شیر پہ۔ نواز شریف کی قیادت میں وہی ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا۔ نواز شریف کو تو فیصل آباد میں ایک میٹرو آپ کو بنا کے دیں گے، میٹرو۔ قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں سن لو، پھر انشاءاللہ آپ کو پاکستان کی شاندار عرفہ کریم آئی ٹی یونیورسٹی بنا کے دیں گے آپ کو اس فیصل آباد میں۔ 8 فروری کو مہر ہیر پھیر پر نہیں، شیر پر لگانی ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں نون لیگ کی حکومت آئے گی تو فیصل آباد میں میٹرو بس چلے گی۔ نواز شریف نے ہمیشہ فیصل آباد کو اپنا شہر سمجھا۔ نواز شریف کی قیادت میں ترقی کا وہی سفر شروع ہوگا۔ نوجوان 8 فروری کو شیر پر ٹھپا لگائیں اور تعلیم کا انتظام کریں۔ نوجوان پاکستان کی طاقت، سرمایہ اور مستقبل ہیں۔ حکیم رانا ثناءاللہ نے ایسا علاج کیا کہ نہ بیمار نظر آتا ہے نہ بیماری نظر آتی ہے۔ مسلم لیگ نون بدتمیزی میں مقابلہ نہیں کرتی،
मुस्लिम लीग बदतहजीबी का जवाब नहीं देती, मुस्लिम लीग नून गाली गलौच नहीं करती, मुस्लिम लीग इल्जामात की सियासत नहीं करती, मुस्लिम लीग किसी को चोर चोर नहीं कहती। मुस्लिम लीग नून अगर मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, बीमार नजर आता है ना बीमारी। जलसे से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, नून लीग बदतमीजी और इल्जामात की सियासत नहीं करती, नून लीग किसी को चोर चोर नहीं कहती, नून लीग मुकाबला करती है तो खिदमत से मुकाबला करती है। क्या खिदमत में मुस्लिम लीग नून की टक्कर का कोई है? फैसलाबाद तरक्की करता है तो पाकिस्तान तरक्की करता है। दूसरे लोग सिर्फ कुर्सी की लालच में सियासत करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटे ताकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपके लिए बोले, आपके लिए काम करे, आपके लिए लड़े। पीपी रहनुमा आसिफा भुट्टो अंदरूने सिंध इंतखाबी महाज पर सरगर्म। नुशहर फिरोज में रैली की क़यादत, खिताब करते हुए कहा, 8 फरवरी तीर की जीत का दिन है, माशी इनकलाब चाहते हैं तो बिलावल को वजीर आजम बनाना होगा। पूरे पाकिस्तान से लोग सिंध में इलाज कराने आते हैं, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा अव्वलीन तरजीह होगी। आम इंतखाबात का काउंटडाउन, इलेक्शन में सिर्फ 6 दिन बाकी। बैलेट पेपर्स की छपाई की तरसील का काम भी 85% मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बैलेट पेपर्स पहुंचा दिए गए। सामान बायर सख्त तरीन सिक्योरिटी में भेजा गया। रावलपिंडी और मरी में भी सामान की तरसील शुरू। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस इंतखाबी अमले की जिम्मेदारियां नहीं संभालेगी। फोर्सेस पोलिंग अफसरान के कामों में किसी तरह की मुदाखलत नहीं करेंगी। किसी भी अहल वोटर को पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने की इजाज़त होगी और ना ही रोका जाएगा। आम इंतखाबात में फौज क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर तैनात होगी। सिविल आर्म फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान की तैनाती से मुतालिक अहम मालूमात जारी। सिक्योरिटी की पहली जिम्मेदार पुलिस, रेंजर्स और एफसी दूसरे मरहले में आएगी। महीनों से काम हो रहा है, चाहे आईबी है और आईएसआई है और बाकी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, वो तमाम की तमाम उसी की रोशनी में सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है, उसी की रोशनी में आर्मी का बैकअप भी है और रेंजर्स का भी है। फौज अवाम के पीछे खड़ी है और जो हमारी केयर टेकर हुकूमत है, ये दोनों मिलकर पोलिंग इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़े हैं और हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से तमाम के तमाम सुबकदोश हो जाएं, उसके लिए मुकम्मल तैयारी है। निगरान हुकूमत किसी को अंदर कर रही है न बाहर, जो फैसले हैं अदालतें कर रही हैं। निगरान वजीर इत्तलात सिंध अहमद शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हसास पोलिंग स्टेशन में फौज तैनात होगी, तमाम पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब कर दिए, वोट चोरी की कोशिश करने वालों को मायूसी होगी। मुआशी और समाजी बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम का भरपूर साथ देंगे। आरपी चीफ कासिम निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ISFC के इजलास, मईशत की बेहतरी के लिए उठाए गए इकदाम का मजमूई तौर पर जायजा। सरमायाकारी के जारी मनसूबों, पॉलिसी इकदाम पर ब्रीफिंग। FBR में इस्लाहात और स्ट्रेटजिक हवाले से विजन 2030 की भी मंजूरी दी गई। बानी PTI और बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए का माली फायदा उठाया। तोशाखाना केस का तफसीली फैसला जारी। लिखा, बानी PTI और बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहों से 108 तहाइफ मिले। सऊदी वलीअहद से बुशरा बीबी ने ग्राफ का ज्वेलरी सेट बतौर तोहफा वसूल किया। तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ, ताहम जमा नहीं कराया गया। ग्राफ ज्वेलरी की असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद थी। बानी PTI और बुशरा बीबी के असर रसूख के बाइस कीमती सेट का तखमीना कम लगाया गया। दोनों कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब पाए गए। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी हासिल की गई। इस्तगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रहा। जेल में गुजारा हुआ वक्त सजा में शामिल तस्वुर होगा। हमें अपना एहतसाब खुद करना होगा कि हमारे ऊपर ये 2 मुसीबतें क्यों मुसल्लत है, क्यों यहाँ पर बदअमनी है, क्यों लोग इस बात से डरते हैं कि हम जलसे में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों हमें रोका जा रहा है कि फलां इलाके में मत जाओ, फलां जलसे में मत जाओ।
घर से बाहर मत निकलो, इंतखाबात में भी अवाम के पास मत जाओ, कैंपेन मत चलाओ, खतरा है तुम्हारी जिंदगी को। आज मुल्क में बदअमनी क्यों है? इलेक्शन मुहिम चलाने से क्यों रोका जा रहा है? मौलाना फजल रहमान का टांग पे जलसे से खिताब। कहा पाकिस्तान की इमारत को हिलाया गया, अब कहते हैं कि आप ठीक नहीं कर सकते। मईशत को तबाह करने वाले अपना एहतसाब खुद करें। हमने हमेशा तहम्मुल और इस्तिकामत से सियासत की है। जहांगीर तरीन की मुल्तान में इंतखाबी मुहिम। अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, मैं हादसाती तौर पर सियासत में आया, ऐवान में जाकर पता चला यहाँ सियासत मुख्तलिफ है। मुझे कहा गया अबाई इलाके में जाकर इलेक्शन लड़ें, नून लीग और IPP हल्के की किस्मत बदल देंगे। हमने मिलकर लोगों की खिदमत करना है। सरबराह किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर ने जहांगीर तरीन की हिमायत कर दी। उधर सदर IPP अलीम खान की यानी 117 शाहदरा टाउन आमद। मसीही बरादरी से मुलाकात, कहा हल्के की बिला तफरीक खिदमत जारी रहेगी। आठ फरवरी को इस कौम का इम्तिहान है, फैसला करना है करप्शन से पाक पाकिस्तान चाहिए या करप्शन ज़दा। 76 बरसों से मुल्क पर कब्जा माफिया का राज है। सिराजुल हक का गुजरावाला में इज्तिमा से खिताब। कहा ऐसा पाकिस्तान देंगे जिसमें इज्जत और महंगाई और गुर्बत जिसमें ना हो, जिसके फैसले पार्लियामेंट में हो, अमेरिका में नहीं। हाफिज नईम कहते हैं कि कराची टैक्स देता है तो मुल्क चलता है। पंजाब और KP पे हेल्थ कार्ड मौजूद है, कराची पे हेल्थ स्कीम क्यों नहीं हो सकती? 8 फरवरी को जुल्म का सूरज ढल जाएगा। पतंग के सिवा हर इंतखाबी निशान की जमानत जब्त होगी। खालिद मकबूल सदीकी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा आज हैदराबाद में तीर के दफन होने का दिन है, अब शहर बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर कराची बल्दिया में खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल बोले, मेरे दौर में कराची सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला शहर था। आज कराची की ये हालत है जैसे गजा पर इसराइल ने बमबारी की है। अरबों का पानी चोरी करके पैसा PP के बड़ों को पहुंचा रहा है। बिलावल ये नहीं कह सकते हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। और लफ्ज़ पाकिस्तान के खालिद चौधरी रहमत अली की आज 73वीं बरसी। पाकिस्तान का लफ्ज़ 1933 में अपनी किताबचे अभी क्या कभी नहीं में मुतारिफ कराया। जो इस्तेफा की इंग्लैंड के शहर कैम्ब्रिज में अमानतन दफन है।